Okay, the next nucleophilic addition reaction case of aldehyde ketone after acetal and ketal formation is addition of ammonia. In the previous lecture, in the last lecture, we have done the mechanism of nucleophilic addition reaction, where we have seen that formaldehyde becomes more reactive due to less plus I group and least steric factor. It's most reactive as compared to any other aldehyde, which is most reactive to alkyl ketones towards the nucleophilic addition reaction. The first nucleophilic, we have seen the addition of hydrogen cyanide, which forms cyanohydrin, then sodium bisulfide, which is used for separation of aldehyde ketones. Then we have seen the addition of alcohols to form acetal ketal, then the Grignard reagent, where formaldehyde gives you with Grignard gives primary alcohol, any other aldehyde gets secondary, and ketone gives tertiary alcohols. Now the next addition reaction, the fifth one, is addition of ammonia, and the ammonia adds to aldehyde ketones in a different manner to give a different products. So this four important reaction is very much important with respect to formaldehyde, acetaldehyde, acetone, and benzaldehyde with respect to ammonia. The first reaction is reaction of formaldehyde with ammonia. Whenever ammonia reacts with formaldehyde, it gives an addition product which is called as urotropin or hexamethylene CH2 6 time N4. This is called as hexamethylene tetraamine, also called as urotropin. Okay, this is a cage like structure of hexamethylene tetraamine. Remember this structure, and remember its uses of urotropin. Urotropin is basically used as internal urinary antiseptic against rheumatism and gout, and second, production of plastic and drugs, plus it is also used for making explosive, matlab explosive nature. So urotropin, if it been undergo nitration, urotropin का अगर nitration करोगे तो it forms RDX, research development explosive, which is also called as cyclotrimethylene trinitramine, and that RDX on dissolving in 55% of HNO3, मतलब इसी को ही आप 55% HNO3 में dissolve कर दोगे, you get HMX, or majestic explosive. Okay, in steam bath for 6 hours. So this is the uses of urotropin, which is formed by the action of ammonia and formaldehyde. Next is the action of ammonia on acetaldehyde. तो acetaldehyde is CH3CHO, ammonia आप add करोगे तो H plus of ammonia goes to O, pi bond shift on oxygen atom, and NH2 minus goes to the carbonyl carbon. So you get a structure like this, that is CH3 attached to C attached to H, then this O getting converting into OH. Okay, and here you have NH2 group attached, NH2 group. So when you heat this compound, when you warm this compound, there is an elimination of water molecule, and the water molecule will get eliminated. देखो यहाँ से एक water molecule eliminate हो जाएगा, H plus from here and OH minus from here. The water is eliminated. This pi bond shift inside, sigma bond shift inside becomes a pi bond and result into the formation of CH3 CH double bond NH. Okay, double bond NH. Now this compound is basically called as acetaldehyde aldimine. ये aldimine RCHNH को aldimine बोलते, तो acetaldehyde aldimine बन गया है, और उसी को अगर आप रिएक्शन में डालोगे तो इट अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, ट्राइमर फॉर्म करेगा acetaldehyde. With this bond open up 3 molecules, it goes and attached to the this one molecule, this pi bond goes and attached to the next molecule का CH. So you have CHNH CHNH linkage, trimer is formed in this reaction. But remember, okay, ये सारे reactions आपके जो addition of ammonia है, it is not there in the textbook explained properly. तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जेई नीट के लिए काम आ जाएगा. ओके, बट HSC में थोड़े चांसेस कम है इसके. HSC थियरी के लिए नहीं है, CET के लिए इतना नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, बट यस जेई नीट के लिए कंफर्म. द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया ऑन एसीटोन. तो एसीटोन पे आप अमोनिया कैसे ऐड करोगे? व्हेन you take 2 molecules of the acetone react with ammonia, initially this acetone molecule CH3COCH3 and CH3COCH3 they undergoes a dehydration reaction where the alpha carbon जो first acetone का उसका H2 और second molecule का O ये eliminate हो जाएगा in the form of H2O. तो ये dehydration हो गया, which result into the formation of CH3C CH3 double bond CH
single bond C double bond O CH3. This is called as मेसिटाइल ऑक्साइड. मेसिटाइल ऑक्साइड बोल सकते हो, या 1 2 3 4 and 5. तो 4 मिथाइल, मेसिटाइल ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल. 1 2 3 4 5 है, तो पेंट 3N2 ओन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड है. And when you add ammonia, the ammonia will add in such a manner according to Markovnikov rule that negative part of the region goes to carbon having less hydrogen. तो H प्लस जाएगा CH पे, so you get a diacetone amine जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3C, CH3, NH2, CH2, C double bond O, CH3. So diacetone amine is formed in this reaction when ammonia is added on acetone. तो ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, फॉर्माल्डिहाइड है. बेंजाल्डिहाइड के लिए रिएक्शन देखते हैं. Now next reaction is reaction of benzaldehyde with ammonia. So 3 molecules of benzaldehyde reacted with ammonia, 2 molecules of ammonia. तो कंडेंसेशन मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देखो यहाँ से H2O लॉस होगा बेंजाल्डिहाइड, यहाँ से एक H2O लॉस होगा, यहाँ से H2O लॉस होगा विद अमोनिया, एंड 3 C6H5CH group is attached to N, so it will result into the formation of C6H5 then CH double bond N, C6H5 CH double bond N. Now it is attached, this both the N are attached to the same carbon atom, that is CH. So you have CH C6H5. This is called as hydrobenzaamide. Hydrobenzaamide बन गया with C6H5CHO. So formaldehyde के साथ में यूरोट्रोपिन बनाएगा अमोनिया. If you take an acetaldehyde, it will form acetaldehyde aldimine which undergo trimerization reaction to form a trimer. Acetone के साथ किया तो फर्स्ट डिहाइड्रेशन होगा to form mesitylene यानी मेसिटाइल ऑक्साइड, which in which ammonia is added according to Markovnikov rule to form diacetone amine. And next is reaction of ammonia with benzaldehyde, which gives you hydrobenzaamide with 3 moles react with 2 moles of ammonia. Now next is reaction of aldehyde ketone with ammonia derivative. Ammonia derivative, ammonia is NH3. Ammonia is NH3. अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेट कर दूंगा Z से, NH2Z अ ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव NH2Z. Now Z can be any group. Z can be a OH group. तो NH2, देखो अमोनिया का NH2 आ गया और उसका H OH से रिप्लेस किया, तो Z can be a OH group. तो इसको अब हम लोग अमोनिया नहीं बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन. अच्छा, Z कैन बी अनदर NH2, तो इसको हाइड्राजीन बोलेंगे आप. Z कैन बी NH C6H5, तो इसको फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि हाइड्राजीन का आपने H रिप्लेस किया C6H5 से. अच्छा, फिर यही H को, हाइड्राजीन के H को आप रिप्लेस कर दोगे CnH2 अमाइड से, तो इट इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड. अच्छा, यही हाइड्राजीन के H को आप रिप्लेस कर दोगे 2,4 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैडिस रिएजेंट. या तो ये अमोनिया के H को आप R से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन RnH2. ये सब के सब अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करेंगे इन अ मैनर वेयर देयर इज H2 इज रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन. अब इसका जनरल रिएक्शन कैसा होगा, ध्यान देना. अपने C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, दिस कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी अल्डिहाइड, दिस कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी कीटोन. यू रिएक्ट विद दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन, ओके, या डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव. तो हमेशा याद रखना ये H2 और O निकल जाएगा हर रिएक्शन में, ठीक है. एंड इट फॉर्म्स C डबल बॉन्ड NZ, इमाइन, इमीनो ग्रुप. आपको याद होगा N स्टैंड्स फॉर द इमीनो ग्रुप. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड. रिएक्शन फास्ट करने के लिए इसके लिए pH अराउंड 3.5 चाहिए रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, एसिड कैटलाइज. मैकेनिज्म देखो इसका मैकेनिज्म आपको थियरी में नहीं है, मार्क कर देता हूँ. सी दिस मैकेनिज्म, कार्बोनिल ग्रुप लिया है, सिंपल है, मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल. यू टेक अ कार्बोनिल ग्रुप, एसिड कैटलाइज है तो H प्लस कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा टू सीक इलेक्ट्रॉन पेयर. उसने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किया, सी ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव चार्ज, उसने पाई बॉन्ड पुल किया, तो फिर टू गेट द लोन पेयर बैक, बट कार्बन विल हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. अब उस पे अमोनिया डेरिवेटिव नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके अटैक करेगा C पे, तो ये हो गया N अटैच टू कार्बन एटम. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस OH ग्रुप विल डिपार्ट, तो इस कार्बन को डेफिशिएंसी होगी,
तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, और प्लस ये नाइट्रोजन का लोन पेयर चाहिए तो ये बॉन्ड भी यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये दोनों H और ये OH लॉस हो गए, तो OH एंड H लॉस इन द फॉर्म ऑफ H2O, और जो H प्लस आया था रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में वो वापस निकल गया, तो यू गेट C डबल बॉन्ड NZ। मतलब सिंपल क्या याद रखना है हमको कि व्हेनेवर यू सी अमोनिया डेरिवेटिव रिमूव वाटर, दैट्स इट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने ये रिएक्शन लिया है इन केस ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, अपने Z को OH से रिप्लेस किया अमोनिया के, तो नाउ दिस रिएजेंट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, यू रिएक्ट विथ व्हाट, अल्डिहाइड कीटोन्स। तो देखो यहाँ से O और यहाँ से H निकल जाएगा, तो H2O इज लॉस्ट, सो यू गेट C डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइम। सो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइम मिलेगा, ऑक्साइम इज C डबल बॉन्ड NOH, रिमेंबर दैट। अच्छा, आपने हाइड्राजीन लिया है NH2, तो एक H2O निकाल दो यहाँ से, सी यू रिमूव दिस H2O फ्रॉम योर, H2O निकल गया, तो यू गेट C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन, क्योंकि हाइड्राजीन से बना है। फिनाइल हाइड्राजीन लिया तो यू गेट C डबल बॉन्ड NH C6H5, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड लिया, किससे बनता है, हाइड्राजीन के H को रिप्लेस करोगे अमाइड CONH2, तो उसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। तो अगेन यू रिमूव दिस H2O, यहाँ का H2O निकालना, ये नहीं निकालना है NH2 का। CO से जो अटैच है वो H2 लॉस नहीं होगा, NH से जो NH2 अटैच है वो लॉस होगा। सो यू गेट C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलेंगे हम लोग सेमी कार्बाजोन। नाउ 2,4-DNP यूज़ किया, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैडिस रिएजेंट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो अगेन यहाँ से वाटर आप निकाल दोगे, सो यू गेट C डबल बॉन्ड N अटैच टू NH अटैच टू रिंग, ये रिंग के फोर्थ पोजीशन पे NO2 और सेकेंड पोजीशन पे NO2, दिस विल बी कॉल्ड एज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, नाउ प्राइमरी अमाइन, अगर आपने H2O निकाल दिया, रिमूव दिस H2O, तो अगेन यहाँ से जो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी डेफिनेटली हैविंग अ C डबल बॉन्ड NR ग्रुप। ओके, C double bond NR group, also called as free agent, that is form heated amines with this, तो इसको हम लोग स्किफ बेस भी बोल सकते हैं, स्किफ बेस, okay, with the primary amine. So remember this in detail. All these are ammonia derivative, 6 ammonia derivative, you replace it, you get a different product. अब इसके कुछ examples देख लेते हैं हम लोग। See this example, एसिडाल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो H2O हमको लॉस कराना है, यहाँ से H2O लॉस कराया pH 3.5 पे, पूरा रिएक्शन 3.5 एसिडिक मीडिया, सो यू गेट अ CH3CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड एज एसिडाल्डिहाइड ऑक्साइम, ये एसीटाल्डो ऑक्साइम, एसिडाल्डिहाइड से बना, एसीटोन से बनाओगे, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 डबल बॉन्ड NOH, दिस विल बी कॉल्ड एज एसिटोऑक्साइम, क्योंकि एसीटोन से बना है, ऑब्वियसली वाटर आ जाएगा इधर पे। फिर यहाँ से वाटर निकालोगे एसिडाल्डिहाइड से, तो यू गेट CH3CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, दिस इज कॉल्ड एज एसिडाल्डिहाइड हाइड्राजोन। फिर अगेन यू रिमूव H2O फ्रॉम योर, तो यू गेट स्ट्रक्चर C6H5CH डबल बॉन्ड NH C6H5, दिस इज कॉल्ड एज, ये बेंजाल्डिहाइड से बना है तो बेंजाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। देन फिर एसीटोन लिया, 2,4-DNP, ब्रैडिस रिएजेंट निकाल दिया, सो यू गेट CH3CH डबल बॉन्ड NH अटैच टू रिंग, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ओके, सेमी कार्बाजोन से देखो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इधर पे H2O निकाल देगा इधर पे, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH2, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर अमोनिया डेरिवेटिव। नाउ इसमें एक रिएक्शन है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट,
इट इज़ ओनली फॉर जेई एंड नीट, सीईटी के लिए नहीं है ये रिएक्शन, थियरी के लिए नहीं है। क्या है ये, पहले रिएक्शन समझ लो, मैंने यहाँ पर दिया है दैट कीटो ऑक्साइम, ऑक्साइम इज सी डबल बॉन्ड NOH। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्साइम क्या होता है, तो ऑक्साइम इज सी डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्साइम। तो ऑक्साइम ऑन रिएक्टिंग विद कीटो ऑक्साइम, कीटोन से जो बना है ऑक्साइम, रिएक्टिंग विद एसिड सच एज H2SO4 या PCl5 या H3PO4 SOCl2 या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, अगर इनसे रिएक्ट करेगा इट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। देखो नॉर्मल अमाइड क्या होता है, RCONH2 को अमाइड बोलते हैं, अगर इसका एक हाइड्रोजन में निकाल के R डैश डाल दूँ तो इसको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोलेंगे, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने ये लिया है, देखो ये एसिडोऑक्साइम है, ये एसिडोऑक्साइम हम लोग ने यहाँ बनाया था बराबर, देखो वही लिया है मैंने, इसी को मैंने रिएक्ट किया है कॉन्क H2SO4 या SOCl2 इन ईथर से, इट अंडरगोज बेकमैन रीअरेंजमेंट। कैसा होगा रीअरेंजमेंट, सी प्रॉपरली, और ग्रुप कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो भी बराबर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन बेकमैन्स रीअरेंजमेंट इसका मैकेनिज्म अब देख लोगे तो और क्लियर है कि जो ऑक्साइम हम लोग लेते हैं कीटो ऑक्साइम, उसके O पे लोन पेयर होता है और ये एसिड कैटलाइज है, सो इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट गोइंग टू द H+ आयंस कमिंग फ्रॉम एन एसिड, क्योंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, इसमें एसिड यूज़ हो रहा है। ओके, तो दिस इज H+ इज कमिंग फ्रॉम एसिड, इट एक्ट ऑन ऑक्साइम। ओके, फिर ऑक्साइम में O उसको लोन पेयर देखिए प्लस चार्ज लाएगा, इट विल पुल दिस पाई। देखो अब ये सिग्मा बॉन्ड जब ये पुल करेगा ना लोन पेयर के लिए, H2O निकल गया, तो इस पर डेफिशिएंसी आई, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, R+ बनेगा, ये R+ को N अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब वन ऑफ द R इज शिफ्टेड टू N, सी, फिर N पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर दिया है तो पूरा पाई बॉन्ड N पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, तो फिर वाटर जो निकला था वो अपना लोन पेयर लेके आएगा इसके पास, टू फॉर्म वॉट, अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, जिसमें से अगेन O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने लोन पेयर दिया है, इट टेक्स अवे द सिग्मा बॉन्ड टू रिलीज H+ आयंस, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब टॉटोमेरिज्म, कैसे टॉटोमेरिज्म, 1,3 माइग्रेशन, बराबर देखो, सी प्रॉपरली दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन नाइट्रोजन, तो इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से कार्बन पे डिफिशियंसी होगी, तो ऑक्सीजन का ये सिग्मा बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा एंड H+ गोज टू N, सो नाउ यू हैव NH C डबल बॉन्ड O। मैकेनिज्म सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, इट इज़ नॉट देयर फॉर HAC एंड ऑल, बट इसका प्रोडक्ट कैसा बनाना है बहुत सिंपल है, एक CH3, देखो O को डाल दो C पे, सिंपल, H गोज टू N एंड वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप गोज टू N। मतलब अगर मुझे यहाँ करना है तो बेसिकली मैं कैसे शिफ्ट करूँगा, पहले मैं पाई बॉन्ड को इस पे लेके आऊँगा N पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर पे, फिर उसके बाद में ये H+ को आई विल ब्रिंग इट हियर along with this C2H5 and this O goes to C, so you have a structure C2H5 C double bond O NH C2H5, clear है, that is Beckmann's rearrangement reaction. Now only for J and need. The next reaction is reaction of PCl5 and SOCl2, क्लोरिनेटिंग एजेंट है, अपने अल्काइल हैलाइड में भी देखा था कि अल्कोहल के OH को रिप्लेस करते हैं Cl से, सेम यहाँ पर क्लोरिनेटिंग एजेंट है, दो O को रिप्लेस कर देंगे बट डबल बॉन्ड O है, तो इफ़ यू यूज PCl5 वन ऑफ द क्लोरीन गोज टू C, अनदर क्लोरीन गोज टू C, सो यू गेट अ जेमिनल डाइहलाइड प्लस O गोज टू P टू फॉर्म POCl3, SOCl2 यूज़ किया तो सेम वैसी होगा, Cl गोज टू C, अनदर Cl गोज टू C, O गोज टू S, सो यू गेट CCl जेमिनल डाइहलाइड प्लस SO2 गैस। अब PCl5 यूज़ किया तो यू गेट CH3 CH Cl geminal dihalide plus POCl3. If you use SOCl2 then again this bond will break to form CH3 CH3 Cl plus SO2. So they are clonating agent to form geminal dihalide. अल्कोहल के साथ में मोनोहलाइड बनाते हैं, OH को गायब कर देते हैं, रिप्लेस इट बाय Cl, बट यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके 2 Cl ऐड कर देंगे टू फॉर्म जेमिनल डाइहलाइड. ओके, now after nucleophilic addition, let's come to the reduction of aldehyde and ketone. The first kind of reduction of aldehyde ketone is reduction to alcohols. You have seen this reaction in alcohols, obviously preparation of alcohol में तो आपको याद होगा, aldehyde and ketone when react with these catalysts, nickel platinum H2, sodium ethanol,
or lithium aluminum hydride, sodium borohydride, they gives a alcohol reduction done in such a manner कि अगर CHO aldehyde यूज़ किया तो you get a primary alcohol RCH2OH. ये हम लोग ने reactions पूरा देखा है, alcohols में refer करना उसको. कीटोन यूज़ किया so it will be RCHOHR. मतलब aldehyde gives primary alcohol, ketones gives secondary alcohol. यही रिएक्शन हम लोग ने किया था. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको याद होगा दे डू नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C. बट एक चीज़ और नोटिस करना, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग उधर पे, बट रिमेंबर दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर पावरफुल देन सोडियम बोरोहाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस ऑल दीज कंपाउंड्स, aldehyde into primary alcohol, ketone into secondary alcohol, acid into primary alcohol, ester into the mixture of alcohols, RCOCl इसको भी रिड्यूस करेगा into alcohol, RCONH2 को रिड्यूस करेगा, बट RCN, RNO2 सबको इसको प्राइमरी अमाइन में रिड्यूस करेगा. इट्स अ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. बट NaBH4 reduces aldehydes to alcohol and do not reduce all these, even epoxide. Acid esters को reduce नहीं करता वो. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड देखो, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसमें एस्टर ग्रुप है और डबल बॉन्ड भी है. डबल बॉन्ड को तो दोनों टच नहीं करते. अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस C डबल बॉन्ड हो इंटू CHOH क्योंकि ये कीटोन है, प्लस वो एस्टर को भी ब्रेक कर देगा. और एस्टर को ब्रेक करेगा तो वो कैसा ब्रेक करेगा, फ्रॉम योर इट विल ब्रेक एन एस्टर. सो दिस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH. देखो ये इसका अल्कोहल बन गया रिडक्शन से. देन CH2 अगेन यू ब्रेक दिस पार्ट C डबल बॉन्ड हो, तो व्हेन इट ब्रेक एस्टर तो अगेन ये एस्टर को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, OH पे इधर आएगा, तो इट विल फॉर्म CH2OH प्लस ये पार्ट रिड्यूस होगा इंटू C2H5OH. लेकिन यूज NaBH4 तो वो एस्टर के पार्ट को टच ही नहीं करता, वो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा. तो यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट. डबल बॉन्ड को भी टच नहीं करता, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल बन गया. और ये वैसे की वैसे रहेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5. सो दिस वॉज रिडक्शन टू अल्कोहल्स. इसका पूरा डिटेल मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, वहाँ भी डिस्कस किया है. तो सी द माई नोट्स प्रॉपरली. ओके, द नेक्स्ट रिडक्शन इसमें याद रखना ओनली फॉर JEE एंड नीट, दैट इज MPV, मर्विन पॉन्ड्रॉफ वॉल्यूम रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज MPV रिडक्शन रिएक्शन. इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. आपने एक रिड्यूसिंग, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुना था ओपेनर ऑक्सीडेशन का, वो था एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड. ये टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड नहीं, ये आइसोप्रोपो ऑक्साइड है. आइसोप्रोपो ऑक्साइड आया तो MPV, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट जो कीटोन को रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस कीटोन इनटू एन अल्कोहल बट इट डज नॉट टचेस C डबल बॉन्ड C. तो कीटोन को कैसा रिड्यूस करेगा, H गोज टू C, H गोज टू O टू फॉर्म अ सेकेंडरी अल्कोहल. सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, दैट इज CHOH टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल. जैसा अब मैंने ये लिया तो ये कीटोनिक पार्ट ही रिड्यूस होगा. C डबल सेवन C को ये भी टच नहीं करता, लाइक LLH4 डाइबाल H, इसकी तरह ये टच नहीं करेगा. तो यहाँ पर बन जाएगा OH एंड डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज बिकॉज इट डज नॉट टचेज C डबल बॉन्ड C. इसकी जगह पे रैने निकल यूज़ किया था, प्लैटिनियम पैलाडियम, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता और इसको अल्कोहल में बना देता. बट दीज रिएजेंट्स along with MPV, aluminum isopropo oxide does not touches C double bond C and it is a reverse of open-R oxidation. याद होगा सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो कीटोन, और कीटोन को रिड्यूस किया तो सेकेंडरी अल्कोहल. तो अगर कीटोन के अंदर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड आया तो वो रिडक्शन है, दैट इज रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल कॉल्ड एज MPV. और वही सेकेंडरी अल्कोहल में ओपेनर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड डाल दिया तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. सो ये दोनों रिवर्स रिएक्शन है, MPV और ओपेनर. दोनों का रिएजेंट खाली याद रखना, एक का रिएजेंट है एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटो ऑक्साइड और एक का रिएजेंट है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड. ओके, द नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये भी हम लोग ने अल्केन्स में किया है. क्लेमेंसेंस, जिंक अमालगम कॉन्ग HCl, 4 हाइड्रोजन है, 2 C के पास जाएंगे, 2 O के पास, तो C डबल बॉन्ड हो किसमें कन्वर्ट होगा, CH2 प्लस H2O. जैसे एसिडोन लिया CH3 CH2
CH3 प्लस H2O, ये मैंने अल्केन्स में पढ़ा है, क्लेमेंसेंस। इसमें दूसरा वुल्फ केशनर, ये भी हम लोगों ने किया था यूजिंग हाइड्राजीन एंड KOH के एल्डिहाइड कीटोन से फर्स्ट स्टेप में हाइड्राजीन रिएक्ट करके H2O निकाल लेता है टू फॉर्म C डबल बॉन्ड NNH2, हाइड्राजोन NNH2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसा होता है, दोनों HC के पास चले जाते हैं और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो यू गेट CH2 अगेन प्लस N2 गैस इज रिलीज। जैसा अभी मैं एसिड एल्डिहाइड लिया तो इट फॉर्म CH3 CH2H प्लस N2 गैस। ये भी हम लोगों ने कवर किया है इन केस ऑफ अल्केन्स प्रिपरेशन में। रेड फॉस्फोरस विद HI भी कवर किया था हम लोग ने अल्केन्स में, कि व्हेन कार्बन कंपाउंड रिएक्ट्स विद HI इन रेड फॉस्फोरस, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बारे में आपको याद होगा, ये सारे कंपाउंड्स को RX, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड सबको अल्केन में कन्वर्ट करता है। ये भी हम लोग ने अल्केन्स में देखा है, सेम रिएक्शन। HI से रिएक्ट करोगे तो H गोज टू O टू फॉर्म CH2 प्लस 2 H2O निकलेगा प्लस 2I2, आयोडीन इज रिलीज। जैसा अभी एसिडोन लिया तो सीधा प्रोपेन बना देगा, कन्वर्ट्स इनटू प्रोपेन प्लस H2O प्लस 2I2। ये तीनों रिएक्शन हम लोग ने अल्केन्स देखे थे, वापस यहीं कवर किया है। ओके, द नेक्स्ट इज रिडक्शन टू पीनाकोल। नाउ व्हाट इज पीनाकोल? पीनाकोल इज 1,2-डायोल, विसिनल डायोल, दो अलग अलग कार्बन बट एडजेसेंट, उसको पीनाकोल बोलते हैं। कौन ये रिएक्शन देता है पीनाकोल का? सिर्फ कीटोन। मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन ले लो, मैग्नीशियम और मर्क्यूरी अमालगम ले लो, इन वाटर डू हाइड्रोलिसिस, इट विल रिलीज नेसेंट हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन O पे जाता है, एक हाइड्रोजन ये O पे जाता है, दोनों C आपस में ज्वाइन हो जाते हैं टू गेट अ स्ट्रक्चर CH3, C CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 OH OH, कॉल्ड एज पीनाकोल। सिंपल रिएक्शन है, मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है फॉर HSC, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि मैग्नीशियम अपने 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, होमोलिसिस होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा, बॉन्ड बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर ही है, और एक कार्बन पे रह जाएगा टू फॉर्म रेडिकल। नाउ दिस इज अ रेडिकल फॉर्म, कीटीन रेडिकल। फिर उसके बाद में दूसरा मॉलिक्यूल कीटोन का आएगा, यहाँ भी होमोलिसिस होगा, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन से टाई अप करेगा और 2 कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ जाएंगे। फिर अब जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये बॉन्ड पूरा यहाँ से ब्रेक होता है, Mg इज लॉस, बोथ द H गोज टू O एंड बोथ द C कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास कंबाइन होने के लिए, और OH OH आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों जगह पे H आ जाएंगे O पे, पीनाकोल बनेगा। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, फॉर JEE and NEET अगेन, पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सी दिस इज पीनाकोल जो मैंने यहाँ पर लिया है, अभी ये मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दिस इज 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, दिस इज पीनाकोल। यही पीनाकोल को अगर आप लोगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर निकाल के, डिहाइड्रेशन। और वो भी कौन सा कीटोन बन रहा है, देखो ये पीनाकोल का CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आएगा, सिंगल बॉन्ड C, एक CH3 माइग्रेट होके इधर आ जाएगा टू फॉर्म CH3 CH3। दिस इज कॉल्ड एज पीनाकोलोन, अ कीटोनिक फॉर्म फ्रॉम डायोल। कैसे बनता है? एसिड कैटलाइज है, आपने पीनाकोल लिया, एसिड डाल दिया, वो किसी एक O पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, this oxygen will pull electron from the sigma bond, carbocation, methyl shift on carbocation to form more stable carbocation, this is more stable, rearrangement याद होगा। फिर ये अपना ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा और हाइड्रोजन से सिग्मा ले लेगा अपने लोन पेयर के लिए, कीटोन बन गया, H+ विल बी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, तो H+ आया था वापस निकल गया। तो दिस वाज पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट ओनली फॉर JEE and NEET। याद रखना पीनाकोलोन क्या होता है, कीटोनिक फॉर्म फ्रॉम अ डायोल, एंड आपको सिर्फ HSC में यही याद रखना है, बस इतना रिएक्शन, बट दिस इज फॉर JEE and NEET, रिमेंबर दिस पीनाकोलोन। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स।